एक्ट्स चैप्टर 21 37 वर्स से 22 चैप्टर 1 वर्स से 21 वर्स तक, जॉब 32 चैप्टर 33 चैप्टर 34 चैप्टर 35 चैप्टर। हम पढ़ेंगे एक्ट्स 21 चैप्टर 37 वर्स से, उसके बाद 22 चैप्टर में चले जाएंगे, 1 वर्स से 21 तक पढ़ेंगे। एक्ट्स 21 चैप्टर 37 वर्स से। And as Paul was to be led into the castle, he said unto the chief captain, May I speak unto thee? Who said, Canst thou speak Greek? Art not thou that Egyptian which before these days madest an uproar, and leddest out into the wilderness 4,000 men that were murderers? But Paul said, I am a man which am a Jew of Tarsus, a city in Cilicia, a citizen of no mean city, and I beseech thee, suffer me to speak unto the people. And when he had given him license, Paul stood on the stairs and beckoned with the hand unto the people. And when there was made a great silence, he spake unto them in the Hebrew tongue, saying, chapter 22, हम 1 वर्स से 21 वर्स तक पढ़ेंगे। Paul declareth how he was converted. He escaped scourging, being a Roman citizen. 1st verse से, Men, brethren, and fathers, hear ye my defense, which I make now unto you. And when they heard that he spake in the Hebrew tongue to them, they kept the more silence. And he said, I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as ye all are this day. And I persecuted this way unto the death, binding and delivering into prisons both men and women, as also the high priest doeth bear me witness, and all the estate of the elders, from whom also I received letters unto the brethren, and went to Damascus to bring them which were there bound unto Jerusalem for to be punished. And it came to pass that as I made my journey and was come nigh unto Damascus about noon, suddenly there shone from heaven a great light round about me. And I fell unto the ground, and heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me? And I answered, Who art thou, Lord? And he said unto me, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest. And they that were with me saw indeed the light, and we were afraid, but they heard not the voice of him that spake to me. And I said, What shall I do, Lord? And the Lord said unto me, Arise and go into Damascus, and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do. And when I could not see for the glory of that light, being led by the hand of them that were with me, I came into Damascus, and one Ananias, a devout man according to the law, having a good report of all the Jews which dwelt there, came unto me, and stood and said unto me, Brother Saul, receive thy sight. And the same hour I looked up upon him. And he said, The God of our fathers hath chosen thee, that thou shouldest know his will, and see that just one, and shouldest hear the voice of his mouth. For thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard. And now why tarriest thou? Arise and be baptized,
and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. And it came to pass that when I was come again to Jerusalem, even while I prayed in the temple, I was in a trance, and saw him saying unto me, Make haste and get thee quickly out of Jerusalem, for they will not receive thy testimony concerning me. And I said, Lord, they know that I imprisoned and beat in every synagogue them that believed on thee. And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him. And he said unto me, Depart, for I will send thee far hence unto the Gentiles. प्रेरितों के काम 21 अध्याय 37 वचन से 22 अध्याय के 1 वचन से 21 वचन तक पढ़ना है। फिर अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय 33 अध्याय 34 अध्याय 35 अध्याय। हम पहले प्रेरितों के काम में से शुरू करेंगे। 21 अध्याय 37 वचन से पढ़ते हुए जाएंगे, 22 अध्याय के 1 वचन से 21 वचन तक पूरा करेंगे। प्रेरितों के काम 21 अध्याय 37 वचन से हम पढ़ रहे हैं। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे, तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूँ? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले विद्रोही बनकर 4000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। अब हम 22 वचन में से पढ़ेंगे, 22 अध्याय में से पढ़ेंगे 1 वचन से 21 वचन तक। भीड़ के सामने पौलुस का भाषण। पहले वचन से पढ़ेंगे 22 अध्याय 1 वचन से 21 वचन तक। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो, जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसूस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदी गृह में डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनीय गवाह है कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियाँ लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहाँ हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम लाऊं। अपने हृदय परिवर्तन का वर्णन 6 वचन से आगे। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूँ? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहाँ तुझसे सब बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहाँ रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग।
उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर उस अपने पापों को धो डाल। अन्य जातियों में प्रचार का आह्वान। 17 वचन से आगे, जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि वह मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों के बंदी गृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहाँ खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। जॉब 32 चैप्टर, 33 चैप्टर, 34 चैप्टर, 35 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। चैप्टर 32, एलीहू इज एंग्री विथ जॉब एंड हिज 3 फ्रेंड्स। ही reproves them for not satisfying Job. फर्स्ट वर्स से, so these 3 men ceased to answer Job, because he was righteous in his own eyes. Then was kindled the wrath of Elihu the son of Barachiel the Buzite of the kindred of Ram. Against Job was his wrath kindled, because he justified himself rather than God. Also against his 3 friends was his wrath kindled, because they had found no answer and yet had condemned Job. Now Elihu had waited till Job had spoken, because they were elder than he. When Elihu saw that there was no answer in the mouth of these 3 men, then his wrath was kindled, and Elihu the son of Barachiel the Buzite answered and said, I am young, and ye are very old. Wherefore I was afraid and durst not shew you mine opinion. I said, days should speak, and multitude of years should teach wisdom. But there is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Great men are not always wise, neither do the aged understand judgment. Therefore I said, hearken to me, I also will shew mine opinion. Behold, I waited for your words, I gave ear to your reasons, whilst ye searched out what to say. Yea, I attended unto you, and behold, there was none of you that convinced Job, or that answered his words, lest ye should say, we have found out wisdom. God thrusteth him down, not man. Now he hath not directed his words against me, neither will I answer him with your speeches. They were amazed, they answered no more. They left off speaking when I had waited, for they spake not, but stood still and answered no more. I said, I will answer also my part, I also will shew mine opinion, for I am full of matter. The spirit within me constraineth me. Behold, my belly is as wine, which hath no vent. It is ready to burst like new bottles. I will speak that I may be refreshed. I will open my lips and answer. Let me not, I pray you, accept any man's person, neither let me give flattering titles unto man. For I know not to give flattering titles, in so doing my Maker would soon take me away. Chapter 33, first verse. Introduction. Elihu offers to reason with Job.
He excuses God from giving men an account of his ways. God calls men to repentance by visions, afflictions, and by his ministry. First verse say, Wherefore, Job, I pray thee, hear my speeches and hearken to all my words. Behold, now I have opened my mouth, my tongue hath spoken in my mouth. My words shall be of the uprightness of my heart, and my lips shall utter knowledge clearly. The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. If thou canst answer me, set thy words in order before me, stand up. Behold, I am according to thy wish in God's stead. I also am formed out of the clay. Behold, my terror shall not make thee afraid, neither shall my hand be heavy upon thee. Surely thou hast spoken in mine hearing, and I have heard the voice of thy words, saying, I am clean without transgression. I am innocent, neither is there iniquity in me. Behold, he findeth occasions against me. He counteth me for his enemy. He putteth my feet in the stocks. He marketh all my paths. Behold, in this thou art not just. I will answer thee that God is greater than man. Why doest thou strive against him? For he giveth not account of any of his matters. For God speaketh once, yea, twice, yet man perceiveth it not. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon men in slumberings upon the bed, then he openeth the ears of men and sealeth their instruction, that he may withdraw man from his purpose and hide pride from man. He keepeth back his soul from the pit, and his life from perishing by the sword. He is chastened also with pain upon his bed, and the multitude of his bones with strong pain, so that his life abhorreth bread, and his soul dainty meat. His flesh is consumed away, that it cannot be seen, and his bones that were not seen stick out. Yea, his soul draweth near unto the grave, and his life to the destroyers. If there be a messenger with him, an interpreter, one among 1,000 to shew unto man his uprightness, then he is gracious unto him and saith, Deliver him from going down to the pit. I have found a ransom. His flesh shall be fresher than a child's. He shall return to the days of his youth. He shall pray unto God, and he will be favorable unto him, and he shall see his face with joy, for he will render unto man his righteousness. He looketh upon men, and if any say, I have sinned and perverted that which was right, and it profited me not, he will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light. Lo, all these things worketh God oftentimes with man, to bring back his soul from the pit, to be enlightened with the light of the living. Mark well, O Job, hearken unto me. Hold thy peace, and I will speak. If thou hast anything to say, answer me. Speak, for I desire to justify thee. If not, hearken unto me. Hold thy peace, and I shall teach thee wisdom. Chapter 34. Elihu accuses Job for charging God with injustice. God cannot be unjust, etc. First verse say, Furthermore, Elihu answered and said, Hear my words, O ye wise men, and give ear unto me, ye that have knowledge. For the ear trieth words as the mouth tasteth meat. Let us choose to us judgment. Let us know among ourselves what is good. For Job hath said, I am righteous, and God hath taken away my judgment.
Should I lie against my right? My wound is incurable without transgression. What man is like Job, who drinketh up scorning like water, which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men? For he hath said, It profiteth a man nothing, that he should delight himself with God. Therefore hearken unto me, ye men of understanding, far be it from God that he should do wickedness, and from the Almighty that he should commit iniquity. For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways. Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment. Who hath given him a charge over the earth, or who hath disposed the whole world? If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath, all flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust. If now thou hast understanding, hear this, hearken to the voice of my words. Shall even he that hateth right govern? And wilt thou condemn him that is most just? Is it fit to say to a king, Thou art wicked, and to princes, Ye are ungodly? How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? For they all are the work of his hands. In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away, and the mighty shall be taken away without hand. For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings. There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves. For he will not lay upon man more than right, that he should enter into judgment with God. He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead. Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed. He striketh them as wicked men in the open sight of others, because they turned back from him, and would not consider any of his ways, so that they caused the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted. When he giveth quietness, who then can make trouble? And when he hideth his face, who then can behold him? Whether it be done against a nation or against a man only, that the hypocrite reign not, lest the people be ensnared. Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more. That which I see not, teach thou me. If I have done iniquity, I will do no more. Should it be according to thy mind, he will recompense it, whether thou refuse or whether thou choose, and not I. Therefore speak what thou knowest, let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me. Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom. My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men. For he addeth rebellion unto his sin. He clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God. Chapter 35. No comparison to be made with God, because our good or evil cannot extend to him. Many cry in their afflictions, but are not heard for want of faith. First verse say, Elihu spake moreover and said, Thinkest thou this to be right, that thou sayest, My righteousness is more than God's?
For thou sayest, what advantage will it be unto thee? And what profit shall I have, if I be cleansed from my sin? I will answer thee and thy companions with thee. Look unto the heavens and see, and behold the clouds which are higher than thou. If thou sinnest, what doest thou against him? Or if thy transgressions be multiplied, what doest thou unto him? If thou be righteous, what givest thou him? Or what receiveth he of thine hand? Thy wickedness may hurt a man as thou art, and thy righteousness may profit the Son of Man. By reason of the multitude of operations, they make the oppressed to cry. They cry out by reason of the arm of the mighty. But none saith, where is God my Maker, who giveth songs in the night? Who teacheth us more than the beasts of the earth, and maketh us wiser than the fowls of heaven? There they cry, but none giveth answer, because of the pride of evil men. Surely God will not hear vanity, neither will the Almighty regard it. Although thou sayest thou shalt not see him, yet judgment is before him. Therefore trust thou in him. But now, because it is not so, he hath visited in his anger, yet he knoweth it not in great extremity. Therefore doeth Job open his mouth in vain. He multiplieth words without knowledge. अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय, 33 अध्याय, 34 अध्याय, 35 अध्याय। हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 32, 33, 34, 35 अध्याय। हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। एलीहू का तर्क 32 अध्याय पहले वचन से। तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू, जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया। फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर न दे सके, तो भी उसको दोषी ठहराया। एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों का अंत होने की बाट जोहता रहा। परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा, मैं तो जवान हूँ और तुम बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। मैं सोचता था, जो आयु में बड़े हैं वे ही बात करे, और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाए। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस, जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। जो बुद्धिमान है वे बड़ी आयु के लोग ही नहीं, और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी भी सुनो, मैं भी अपना विचार बताऊँगा। मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिए ठहरा रहा। जबकि तुम कहने के लिए शब्द ढूंढते रहे, मैं चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा। परंतु किसी ने अय्यूब के पक्ष का खंडन नहीं किया और न उसकी बातों का उत्तर दिया। तुम लोग मत समझो कि हमको ऐसी बुद्धि मिली है कि उसका खंडन मनुष्य नहीं, परमेश्वर ही कर सकता है। जो बातें उसने कही वह मेरे विरुद्ध नहीं कही, और न मैं तुम्हारी सी बातों से उसको उत्तर दूंगा। वे विस्मित हुए और फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बातें करना छोड़ दिया, इसलिए कि वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं। क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं? परंतु अब मैं भी कुछ कहूँगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूँगा, क्योंकि मेरे मन में बातें भरी है और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। मेरा मन उस दाख मधु के समान है जो खोला न गया हो। वह नई कुप्पियों के समान फटा चाहता है।
शांति पाने के लिए मैं बोलूँगा, मैं मुँह खोलकर उत्तर दूँगा। न मैं किसी आदमी का विपक्ष करूँगा और न मैं किसी मनुष्य की चापलूसी करूँगा, क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना आता ही नहीं, नहीं तो मेरा सिरजनहार क्षण भर में मुझे उठा लेता। 33 अध्याय पहले वचन से, तो भी है अय्यूब, मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेंगी। जो ज्ञान मैं रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूँगा। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान के सांस से मुझे जीवन मिलता है। यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रचकर खड़ा हो जा। देख, मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूँ, मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ। सुन, मेरे डेरे के मारे तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है और न तू मेरे बोझ से दबेगा। निस्संदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं। मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझ में अधर्म नहीं है। देख, वह मुझसे झगड़ने के दांव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पाँवों को काठ में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूँ, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। तो उससे क्यों झगड़ता है कि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड़हे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियाँ जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती है। तब वह कब्र के निकट पहुँचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। यदि उसके लिए कोई बिचुए स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आए। तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा। वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और वह मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। वह मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया है, मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। देख, ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजियाले का प्रकाश पाए। हे अय्यूब, कान लगाकर मेरी सुन, चुप रह, मैं और बोलूँगा। यदि तुझे कुछ कहना हो तो मुझे उत्तर दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूँ। यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रह, मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। 34 अध्याय एलीहू का वचन, पहले वचन से। फिर एलीहू यूँ कहता गया, हे बुद्धिमानों, मेरी बातें सुनो, और हे ज्ञानियों, मेरी बातों पर कान लगाओ, क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन ले, जो भला है हम आपस में समझ बूझ ले। क्योंकि अय्यूब ने कहा है, मैं निर्दोष हूँ और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। यद्यपि मैं सच्चाई पर हूँ तो भी झूठ ठहरता हूँ, मैं निरपराध हूँ परंतु मेरा घाव असाध्य है।
अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है, जो परमेश्वर की निंदा पानी के समान पीता है, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है। क्योंकि उसने कहा है, मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। इसलिए हे समझ वालों, मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया, या किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यदि तुझ में समझ है तो यह सुन और मेरी इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी हो, क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है, क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा? वह राजा से कहता है, तू नीच है, और प्रधानों से, तुम दुष्ट हो। परमेश्वर हकीमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। आधी रात को पल भर में वे मर जाते हैं और प्रजा के लोग हिलाए जाते और जाते रहते हैं, और प्रतापी लोग बिना हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके, क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछताछ के चूर चूर करता है और उनके स्थान पर दूसरों को खड़ा कर देता है, इसलिए कि वह उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर सब भोंके देखते मारता है, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है और उसके किसी मार्ग पर चित्त न लगाया, यहाँ तक कि उनके कारण कंगालों की दोहाई उस तक पहुँची और उसने दीन लोगों की दोहाई सुनी। जब वह चुप रहता है तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? जब वह मुंह फेर ले तब कौन उसका दर्शन पा सकता है? जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के साथ उसका बराबर का व्यवहार है, ताकि भक्तिहीन राज्य करता न रहे और प्रजा फंदे में फंसाई न जाए। क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा, मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई न करूँगा? जो कुछ मुझे नहीं सूझता वह तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा न करूँगा। क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला पाए, क्योंकि तू उससे अप्रसन्न है? क्योंकि तुझे निर्णय करना है, न कि मुझे। इस कारण जो कुछ तुझे मालूम है वह कह दे। सब ज्ञानी पुरुष वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं वे मुझसे कहेंगे, अय्यूब ज्ञान की बातें नहीं कहता और न उसके वचन समझ के साथ होते हैं। भला होता कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिए हैं। क्योंकि वह अपने पाप के साथ साथ विद्रोह में बढ़ाता है और हमारे बीच ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है। 35 अध्याय एलीहू की वाणी। पहले वचन से, फिर एलीहू इस प्रकार और भी कहता गया, क्या तो इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? जो तू कहता है, मुझे इससे क्या लाभ? मुझे पापी होने में और न होने में कौन सा अधिक अंतर है? मैं तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूँ। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता
का फल तुझे जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। बहुत अंधेर होने के कारण वे चिल्लाते हैं और बलवान के बाहुबल के कारण वे दुहाई देते हैं, तो भी कोई यह नहीं कहता, मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है, जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। तो तू क्यों कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, कि यह मुकद्दमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जोहता हुआ ठहरा है। परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं दिया है और अभिमान पर चित्त बहुत नहीं लगाया। इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुँह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 8 चैप्टर 26 वर्स से 39 वर्स तक, जोशुआ 9 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 26 वचन से 39 वचन तक। यहोशुआ की पुस्तक 9 अध्याय। हमने ये वचनों को अपने अकेले में बैठकर पर्सनल बाइबल स्टडी के रूप में, अभ्यास के रूप में इन वचनों को पढ़ना है। परमेश्वर हमको इन वचनों के आधार से हमारे जीवन को कोई बातें सिखा रहा है, समझा रहा है, तो उसके नोट्स बना लेना है। वैसा ही हमारे जीवन में हमने चलना है। ऐसा होने से परमेश्वर का वचन हमको 2 साल के अंत में हम देखेंगे, हमको चलाया है वचन, तो हम उसी प्रकार की पर्सनालिटी में, व्यक्तिमत्व में होकर आएंगे। और ऐसा व्यक्तिमत्व परमेश्वर अपने राज्य के कामों में इस्तेमाल करता है। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। निश्चित हमने इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।